Hello students, this is the chapter number 19 of your social science book and the title of the chapter is Consumers Awareness. In the previous video we had studied about the causes of consumers exploitation, solution of consumers exploitation, types of consumers exploitation, and now today we will read about the consumers movement. So let's see. Consumers movement was started due to the dissatisfaction of the consumers. There were many reasons of consumers' dissatisfaction like lack of foodstuff, hoardings, black marketing, adulteration, etc. In order to deal with such problems, for the first time in 1955, Essential Commodities Act was passed. Through this effort were made to control production, distribution, price and supply of essential goods. After this, in 1976, Weight and Standard Measures Act was passed to systemize the measurement and weight. After that, in 1986, the Consumers Protection Act was passed by the Government of India. This act is famous as COPRA. The main objective of this act is to decide the complaints of the consumers immediately, and three-tier judiciary system has been established under COPRA at district, state and national levels to resolve the disputes of consumers. The court at district level hears the cases related to claims up to rupees 20 lakhs. The claims from rupees 20 lakh to rupees 1 crore are heard in the state level courts. The courts at national level hears the cases when the claims are of more than rupees 1 crore. The Consumers Protection Act has contributed a lot in making the consumers movement effective in India. These courts, along with deciding the disputes of consumers, guide them too. The Department of Consumer Affairs of the Government of India has launched several schemes to make the consumers aware, such as establishment of consumers organizations in every district and consumer clubs in schools, etc. To bring awareness towards the right of consumers, awareness camps are organized at different levels. In India, 24th December is celebrated as the National Consumers Day. As a result of consumer movement in India, awareness has increased among consumers sufficiently. Today, there are more than 700 consumers organizations working, but due to the indifference behavior of consumers, the number of effective and recognized organization is very less. तो चिल्ड्रन, कंज्यूमर अवेयरनेस की जो स्टार्टिंग है वो कंज्यूमर्स में असंतोष हो गया, उसकी वजह से हुई. कंज्यूमर्स का डिससेटिस्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि लैक ऑफ फूड स्टफ, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से कंज्यूमर्स जो थे वो डिससेटिस्फाई हो गए और फिर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया. इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले तो 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के द्वारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया. और इसके बाद जो कमोडिटीज होती हैं उनको जो उनका मेजरमेंट होता है उसको सही करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए 1976 में वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट पास किया गया. इसके बाद 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया और यह जो एक्ट है वो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है. और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था वह कंज्यूमर्स की शिकायतों को तुरंत निपटाने तथा कानूनी जो प्रोसेस होती है उसको सरल बनाना था. कोपरा के अंडर में आने वाले जितने भी डिस्प्यूट्स रहते हैं उनको निपटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एवं नेशनल लेवल पर एक 3-टायर जुडिशरी सिस्टम को स्थापित किया गया. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह जो कोर्ट है वह 20 लाख तक के जितने भी दावे होते हैं उनसे संबंधित जितने केस होते हैं उन पर विचार करता है और स्टेट लेवल पर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जितने भी मामले होते हैं उन पर सुनवाई होती है और नेशनल लेवल पर जो अदालतें होती हैं उनमें 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी दावे होते हैं उनसे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे संबंधित केसेस पर सुनवाई होती है.
इस एक्ट ने भारत में कंज्यूमर मूवमेंट को बड़ा बनाने, व्यापक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो कोर्ट्स हैं ये कंज्यूमर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो सकें। जैसे कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन और स्कूलों में कंज्यूमर्स क्लबों की स्थापना करना, इस तरह से। और जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए और भी कई स्तरों पर उन्होंने जो जागृति शिविर होते हैं उनको भी उन्होंने स्थापित, उनका भी आयोजन किया जाता है। 24 दिसंबर को हमारे भारत में कंज्यूमर अवेयरनेस नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। इन प्रयासों से कंज्यूमर्स के बीच में काफी अवेयरनेस आई है और अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो चुके हैं। आज देश में 700 से अधिक जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्यरत है, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्चुअली में जो है एक्टिव नहीं है और उनकी उदासीनता के कारण जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जो प्रभावी और मान्यता प्राप्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी संख्या कम है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज। अब कंज्यूमर्स के अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, ये दोनों ही हैं। यदि कंज्यूमर्स इन सब के लिए अवेयर हो जाएं तो उनकी चीटिंग की संभावना काफी कम हो जाती है, उनके साथ चीटिंग की संभावना काफी कम हो जाती है। तो कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज, तो जनरली कंज्यूमर है गॉट द फॉलोइंग राइट्स: राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज एंड द राइट टू रीड्रेसल। राइट टू सेफ्टी में सबसे पहले यह है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स की सेफ्टी का ध्यान रखें। यदि जो प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर्स की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें एक भारी रिस्क उठाना पड़ सकता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अब इस राइट के अंतर्गत आता है कि उपभोक्ता जो भी चीजें खरीदे उसके लिए उसे सारी जानकारी होनी चाहिए और वो सही जानकारी लिखी हुई होनी चाहिए उस प्रोडक्ट पर। राइट टू चूज, जो कंज्यूमर है उसे वस्तुएं खरीदने समय या खरीदने से पहले उसे ये अधिकार होता है कि वह अपने मनपसंद वस्तु ले सके, उसे अपनी वस्तुओं को चूज करने का अधिकार है। एंड राइट टू रीड्रेसल, क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि कंज्यूमर से शोषण के विरुद्ध यदि कोई क्लेम करता है तो उसका ये है उसके पास अधिकार कि वह उसे जो शोषण के साथ हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो प्रोड्यूसर करेगा और जो भी उसका कॉम्पनसेशन बनता है वो उसे देना होगा। अब जहां अधिकारों की बात आती है वहां कर्तव्य जरूर होते हैं। तो सिर्फ अपने अधिकारों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे कर्तव्य क्या है वह भी जानना जरूरी है। तो कुछ ड्यूटीज हैं, वो क्या है? टू टेक बिल, रिसीव्ड, गारंटी कार्ड्स एक्सेट्रा एंड टू प्रिजर्व देम केयरफुली, टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, to discourage black marketing and smuggling. One must complain about the actual problem whether the price of product may be less. Due to this, the cheating tendency of the sellers is curbed. To purchase goods after checking the marks like ISI, FPO, egg mark, wool mark, etc. The government of India has formed such institutions which standardize the quality of goods. The mark of egg mark and ISI is given to industrial and consumers goods. तो उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या है? बिल, रसीद, गारंटी कार्ड लेना और उन्हें संभाल कर रखना, और जो भी कमोडिटी ली है उसकी जो उपभोग में जो वृद्धि है या कमी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसको कि जितना समय बताया गया है, जिस तरह से उपयोग करना बताया गया उसी तरह से उस वस्तु का उपयोग करें। फिर उसके बाद सारे नियमों की जानकारी लेना, और जितने भी काला बाजारी हैं, तस्करी हैं, दैट मीन्स ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग, इनको डिस्करेज करना, और जो वास्तविक समस्या है उसकी शिकायत अवश्य करनी चाहिए, चाहे वस्तु की कितनी भी कम कीमत हो।
और इससे क्या होगा, लोगों जो सेलर्स हैं उनके प्रति ये होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है वो जागरूक हो चुका है और वो फिर चीटिंग करने से पहले कई बार सोचेंगे। और ISI, FPO, एगमार्क, वुलमार्क जैसी कई जो मार्क्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें देखकर ही वस्तुओं को खरीदना। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश में कंज्यूमर्स को चीटिंग से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए हुए हैं और समय समय पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए ये संस्थाएं बहुत अच्छे काम करती हैं। इसके साथ यह भी जरूरी है कि जो कंज्यूमर हैं वह अपने जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं उनको समझें और इस जो कंज्यूमर्स मूवमेंट है इसमें अपना योगदान देने के लिए आगे आएं। So children, here is your chapter number 19 finished. Do the exercise by yourself. In the next video, we will start the globalization.